Students, welcome to all of you in the Mangnade biology classes. Students, we are discuss about another topic of the body fluid and circulation today. That is the blood circulatory systems as well as blood vascular system and lymphatic vascular systems. So, what is the meaning of blood vascular system? You know, in human body there are two types of circulatory systems are found. In human body, there are two types of circulatory systems are found. One is called as blood vascular system and second is called as lymphatic vascular systems. That means in our body, there are two types of fluids are found. One is called as blood and other is called as lymph. Okay, so what is blood vascular system? Blood vascular system consists of different components. What are the components of blood vascular system? That is, it includes three components. That is, one is blood, other is blood vessel, and third is heart. Blood vascular system consists of three components. One is blood, second is blood vessel, third is heart. Now, what is blood? Blood is also called as fluid connective tissue. Remember, blood is also called as fluid connective tissue. It is a specialized type of connective tissue. We are already discussed in the 11th standard in animal tissue. So, it is a blood. Blood is called as fluid connective tissue. It is also called as specialized type of connective tissue. Okay, and what blood consists of? Blood consists of two composition in it. One is called as plasma and other is called as formed element. Formed element means जो फॉर्म हो चुके हैं, बनते हैं. ओके, जो बनते हैं उसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो प्लाज्मा के अंदर क्या रहता है? प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ हाउ मच परसेंट ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा जनरली 55%. ओके, तो ओवरऑल हम अगर डिस्कशन करते हैं किसका, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो आपको पता है ये ब्लड है. ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको हम ब्लड कार्पस या ब्लड सेल बोलते हैं 45%. प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा वाटर है. ओके, 55% में जो प्लाज्मा है उसमें सबसे ज्यादा क्या है? वाटर है. और प्लाज्मा की खासियत क्या है? प्लाज्मा कंटेन डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स. प्लाज्मा के अंदर अलग अलग ब्लड क्लॉटिंग करने वाले प्रोटीन्स है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स. ओके, और प्लाज्मा इज जनरली स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड हैविंग पीएच अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच रहता है प्लाज्मा का 7.4. ओके, और इट इज स्लाइटली अल्कलाइन पीएच हैविंग इन द प्लाज्मा एंड इट इज स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड. ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैट्रिक्स. इसका जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है. एंड फॉर्म्ड एलिमेंट जो है जिसको हम ब्लड कार्पस्क्यूल कहते हैं. ओके, जो 45% आपको देते हैं. ओके, और ब्लड कार्पस्क्यूल के अंदर और तीन टाइप्स है. ब्लड कार्पस्क्यूल इंक्लूड थ्री टाइप्स. वन इज आरबीसी, आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स. सेकंड इज डब्ल्यूबीसी, आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स, आल्सो कॉल्ड एज thrombocytes. So these are all three types of blood corpuscle, also called as formed elements. Okay, now we are detailed discuss about the plasma first. So already I have told you plasma is nothing but the straw colored liquid, straw colored fluid. Okay, it has pH 7.4. It contains maximum amount of water. How much water is in the plasma? Plasma contains 90 to 92% water in it. And you know what is called as good solvent, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर जो भी कुछ है, प्रोटीन हो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, गैसेस हो, उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सॉल्वेंट. किसको? वाटर को बोलते हैं सॉल्वेंट. और प्लाज्मा प्रोटीन भी प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा के अंदर. वाटर कितना है? 90 to 92% है. प्लाज्मा प्रोटीन कितने हैं? 6 to 8% है. एंड प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर तीन टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन है, यहाँ पे याद रखना. प्लाज्मा प्रोटीन 3 in number. One is फाइब्रिनोजीन, नाम ही मीनिंग है फाइब्रिनोजीन, जो फाइब्रिन बनाते हैं ना. ओके, उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजीन. तो आपको पता होगा फाइब्रिनोजीन क्या है? फाइब्रिन बनाने वाले प्रोटीन है. और ये फाइब्रिनोजीन से क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है. और फाइब्रिन की वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होता है. सो फाइब्रिनोजीन नथिंग बट द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन. वन. Second, they contain globulin. What is globulin? Okay, globulin is nothing but the defense protein. Globulin is nothing but the defense protein. Globulin provide defense mechanism. जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं.
IgA, IgG, IgD जो एंटीबॉडी बनाता है, कौन? ग्लोबुलिन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। आपको पता है एंटीबॉडी जो है वाई शेप्ड प्रोटीन रहता है जो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, बॉडी को प्रोटेक्शन करता है या इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को, उसको हम बोलते हैं ग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं? ग्लोबुलिन। सेकंड इज कॉल्ड एज, थर्ड इज कॉल्ड एल्बुमिन। तीसरा जो प्रोटीन है, थर्ड टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड एज albumin. So what is the role of albumin? They maintain the osmotic balance. That means सोडियम एंड पोटेशियम का जो बैलेंस है ब्लड के अंदर वो रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है, कौन? एल्बुमिन। सो कॉल्ड एज, एल्बुमिन इज कॉल्ड एज ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने वाला प्रोटीन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, दे आल्सो कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन इट। प्लाज्मा के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट भी है। आप बोलेंगे न्यूट्रिएंट क्या है सर? जो बॉडी को सप्लाई करते हैं फूड वगैरह। सो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या आता है? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ऑर्गेनिजम्स। तो ये न्यूट्रिएंट जो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ओके, या फिर लिपिड या कोलेस्ट्रॉल, ये न्यूट्रिएंट्स है पूरी बॉडी के पार्ट को सप्लाई किए जाते हैं और जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल की ग्रोथ हो जाती है, उस इंडिविजुअल को एनर्जी मिलती है। किसकी वजह से? न्यूट्रिएंट की वजह से उनको एनर्जी मिलती है और जब एनर्जी मिलती है तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है प्रॉपर्ली। ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट इंक्लूड प्लाज्मा कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स एंड कैल्शियम आयंस। ये पूरे क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है एंड दे रेगुलेट ऑस्मोसिस बैलेंस इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ऑस्मोसिस बैलेंस मेंटेन करते हैं। और लास्ट इज, प्लाज्मा के अंदर का जो लास्ट कंपोनेंट बता रहा हूं आपको, दैट इज गैसेस। ओके, प्लाज्मा के अंदर कुछ डिसॉल्व्ड गैसेस भी रहते हैं दैट कैरीज द ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है किसको? कुछ गैसेस को। ओके, इसके अंदर O2 है, जिसके अंदर CO2 है, इसके अंदर N2 है, नाइट्रोजन है। आपको पता होगा प्लाज्मा कैरी 3% ऑक्सीजन। ओके, प्लाज्मा क्या करता है? 3% ऑक्सीजन कैरी करता है और कुछ अमाउंट का CO2 भी कैरी करता है प्लाज्मा। ये भी याद रखो, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर मतलब प्लाज्मा के अंदर अगर फाइब्रोनोजन वगैरह का क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब वो क्या, इसको क्या कहते हैं? सेरम बोलते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सेरम। इसके इन तीन प्रोटीन के अलावा आपको पता होगा प्लाज्मा के अंदर और भी दो प्रोटीन रहते हैं, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। सुना होगा आपने। प्रोथ्रोम्बिन की वजह से क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन की वजह से क्या होता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्शन हो जाता है, वो भी क्लॉटिंग करता है ब्लड का। और दूसरी बात यह है हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन बनता है एंड हिपेरिन इज द एंटीकोएगुलेंट जो क्लॉटिंग करने से अवॉइड कर देता है, क्लॉटिंग नहीं होने देता। अभी मैं आपको बता रहा हूं फाउंड एलिमेंट क्या है। प्लाज्मा फिनिश फाउंड एलिमेंट क्या है? फाउंड एलिमेंट में तीन टाइप के फाउंड एलिमेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो पहले देखते हैं हम लोग आरबीसी क्या है। व्हाट इज आरबीसी? आरबीसी इज आल्सो कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल, आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का कलर रेड क्यों है? बिकॉज दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कंपोजिशन ज्यादा रहता है, रेड कलर है। याद रखना, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन स्टोर होने की वजह से वहां पे न्यूक्लियस जो है मैच्योर आरबीसी में नहीं रहता। सो दे आर इन्यूक्लिएटेड सेल, विदाउट न्यूक्लियस है, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया है एंड दे कंटेन मैक्सिमम हीमोग्लोबिन इन देयर साइटोप्लाज्म। दे आर बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आरबीसी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है और साइटोप्लाज्म के अंदर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन रहता है। एंड हीमोग्लोबिन लेवल जो है अडल्ट पर्सन में, हीमोग्लोबिन का जो लेवल मैं बता रहा हूं आपको, ओके, नॉर्मल अडल्ट पर्सन में हीमोग्लोबिन का जो लेवल बता रहा हूं आरबीसी के अंदर, दैट इज 12 to 16 ग्राम पर 100 ml रहना चाहिए। अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है, ओके, लेवल है, दैट इज 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड रहना चाहिए नॉर्मली। ठीक है। बाद में आरबीसी आपको पता होगा, ओके, जिसका मेम्ब्रेन इलास्टिक होता है, जो कैपिलरीज के अंदर के पास होते हैं, कैपिलरीज के अंदर से पास होते हैं, कौन? आरबीसी। और आरबीसी का लाइफ स्पैन आपको पता होगा 120 डेज है ना। आरबीसी आर हैविंग लाइफ स्पैन 120 डेज। ओके, आरबीसी का नंबर कितना है, काउंट कितना है आरबीसी का काउंट? इरिथ्रोसाइट काउंट बोलते हैं उसको, दैट इज 5 to 5.5 मिलियंस पर mm क्यूब।
5 to 5.5 मिलियंस पर एमएम क्यूब, दैट इज पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर इतना आरबीसी का कंपोजिशन है। सबसे ज्यादा आरबीसी का कंपोजिशन है 99% जो है ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर 99% जो है आरबीसी रहता। ओके, और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है मैच्योरिटी के टाइम में, खाली कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ओके, दैट इज मैमल्स में अगर कहा जाए तो कैमल एंड लेमा, ये दो एनिमल है, लेमा एंड कैमल, जिनके अंदर आरबीसी न्यूक्लिएटेड रहता है। आरबीसी बनते कहाँ है? आरबीसी को फॉर्मेशन को बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरेथ्रोपोइसिस। ओके, और आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो है इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस जो है रेड बोन मैरो में होती है। ओके, और अगर आरबीसी कम हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइटोपिनिया। कम हो जाते हैं तो बोलते हैं इरेथ्रोसाइटोपिनिया, और ज्यादा हो जाते हैं तो बोलते हैं पॉलीसाइफोनिया। ओके, या फिर आरबीसी काउंट अगर कम हो गया तो हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो जाता है, उसको हम एनीमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइटोपिनिया या एनीमिया भी बोलते हैं। ओके, आरबीसी का शेप कैसा है? आरबीसी जनरली बाइकॉन्केव, एक्चुअली इट लुक लाइक अल्पेनलिबे चॉकलेट। ओके, बाइकॉन्केव रहता है, साइड व्यू से लिया तो स्ट्रक्चर बाइकॉन्केव है या फिर सर्कुलर है इन शेप, हैविंग नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द साइटोप्लाज्म, नो गोल्गी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन द आरबीसी। सो व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीसी? आरबीसी ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2। आपको पता होगा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, और आरबीसी क्या करते हैं फिर 97% अप्रोक्सीमेटली 97% O2 कैरी करते हैं। कहां से कहां? लंग्स टू टिश्यू, और दे आल्सो कैरी CO2, दैट इज 20 to 25% CO2 कैरी करते हैं फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। मतलब आरबीसी हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2, O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर टेट्रामर रहता है। टेट्रामर का अंदर मतलब एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन मॉलिक्यूल, टेट्रामर के अंदर मैं बोल रहा हूं। ओके, हीमोग्लोबिन का जो मोनोमर है उसमें एक आयरन मॉलिक्यूल है, और टेट्रामर के अंदर 4 आयरन मॉलिक्यूल है। और हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर आप पूरी तरीके से देखते हो, हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन रहते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है? हेमी मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन्स। हेमी, आयरन, ग्लोबिन, प्रोटीन्स। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कैपेसिटी है कि वो कैरी कर सकता है क्या? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। सो ये भी आरबीसी के अंदर का हीमोग्लोबिन का कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर आरबीसी मर जाते हैं 120 डेज के बाद तो उनको डिस्ट्रॉय कहां किया जाता है? ओल्ड आरबीसीज, डेड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन। स्प्लीन जो है एक यहाँ पे स्टमक के बाजू में रहता है स्प्लीन, वहां पे वार्न आउट आरबीसी डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, इसलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ये याद रखना कि फेटस के अंदर आरबीसी बनते हैं कहां पे? स्प्लीन में या किडनी में, मगर अडल्ट पर्सन में आरबीसी बनते हैं रेड बोन मैरो में और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन के अंदर, इसीलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। किसमें? अडल्ट के अंदर स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, उसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको मीन्स कलरलेस एंड साइट मीन्स सेल, कलरलेस सेल है। ओके, इस सेल का भी जो लाइफ स्पैन है कंपैरेटिवली आरबीसी के कंपैरिजन में कम है, 1 to 15 डेज है। दे आर कलरलेस, दे आर व्हाइट इन कलर। ओके, और ल्यूकोसाइट काउंट जो बोलते हैं हमको टीएलसी मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, दैट इज 6000 to 8000 पर एमएम क्यूब है। डब्ल्यूबीसी का काउंट बोल रहा हूं, 6000 to 8000 पर एमएम क्यूब है। ओके, ये कहां बनते हैं? दे आर आल्सो फाउंड इन द बोन मैरो। WBC is also found in the bone marrow, lymph glands, lymph nodes, okay, as well as spleens। कहां बनते हैं? बोन मैरो के अंदर, lymph gland के अंदर, या फिर स्प्लीन के अंदर बनते हैं। कौन? WBC। उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइसिस।
अगर ल्यूकोसाइट की संख्या कम हो गई तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपिनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपिनिया। अगर ज्यादा हो गई तो उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ WBC, देयर नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। और WBC कैसे है? दे आर न्यूक्लिएटेड सेल एंड दे हैव डिफरेंट शेप। WBC का आप देख सकते हो, यहाँ पे शेप जो है WBC का अलग अलग है, इसका डिफरेंट फॉर्म है WBC का। और ये भी याद रखना, WBC जो है कैपिलरीज के अंदर से पास नहीं हो सकते। उसके दो रीजन है। वन रीजन इज दे आर लार्जर साइज, WBC का साइज बड़ा रहता है, एंड दीज आर अमीबॉइड सेल। WBC जो है अमीबॉइड सेल है जिनका मूवमेंट अमीबा जैसा होता है। ओके, सुडोपोडिया जैसी उनकी मूवमेंट होती है, इसलिए उसको बोलते हैं अमीबॉइड सेल बोलते हैं। दे आर प्रोवाइड डिफेंस। WBC क्या करते हैं? आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। WBC की वजह से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आती है। ओके, और अगर कैपिलरीज के अंदर से अगर WBC बाहर निकाले जाते हैं, WBC are not passed through the capillaries and they can be squeezed out. WBCs are not passed through the capillaries, they can be squeezed out from the capillaries, and that phenomenon is called as diapedesis. Squeezing out of the WBC from the wall of capillaries, from the capillaries is called as diapedesis बोलते हैं उसको। ओके, और WBC का जो है, WBC की बेसिकली हमने कैटेगरीज बनाया है दो। कौन से दो कैटेगरी बनाए हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड किया है WBC को। वन इज कॉल्ड एज ग्रैनुलोसाइट्स एंड अदर इज कॉल्ड एज अग्रैनुलोसाइट। नाम ही मीनिंग है ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलो मींस ग्रैन्यूल्स, साइट में सेल। जिस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर अगर ऐसे ग्रैन्यूल रहते तो उसको बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। द सेल हैविंग ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड एज ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, और दूसरा जो है अग्रैनुलोसाइट, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग अग्रैनुलोसाइट्स। तो ये दो टाइप है किसके? WBC के। पहले हम फोकस करते हैं ग्रैनुलोसाइट के ऊपर। व्हाट इज ग्रैनुलोसाइट? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, granulocytes are having granules in their cytoplasm and they are again divided into three types. granulocyte क्या और कितने टाइप है? तीन टाइप्स है। one is called as neutrophil, second is called as eosinophil and third is called as basophil. granulocytes are further divided into three types. one is called as neutrophil. अभी neutrophil का खासियत क्या है? they are stained with the neutral dye. पहली बात, neutral, feel, love. They are stained with the neutral dye. They are also called as PMNL, polymorphonuclear leukocytes. नीट में क्वेश्चन आया था ये। polymorphonuclear leukocyte बोलते हैं। इसका न्यूक्लियस जो है अलग अलग शेप का होता है। The nucleus of the neutrophil is 3 to 5 lobed or sometimes 7 lobes. Okay, and remember they have percentage 60 to 65%. हाईएस्ट परसेंटेज जो है ब्लड WBC में, सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है WBC में न्यूट्रोफिल का रहता है। दे आर हैविंग कॉल्ड एज PMNL। इसका जो नेचर है, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। व्हाट इज फैगोसाइटिक? इनगल्फ, खा जाते हैं, निगल जाते हैं किसको? माइक्रोब को या फॉरेन बॉडीज को, इसीलिए इसको बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल। रिमेंबर WBC के अंदर दो ही सेल फैगोसाइटिक है। वन इज कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल एंड अदर इज कॉल्ड एज मोनोसाइट। दो सेल फैगोसाइटिक है WBC के अंदर। वन इज कॉल्ड एज, एक जो सेल है उसको बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल जो है WBC में, पहली न्यूट्रोफिल है और दूसरी जो फैगोसाइटिक सेल है दैट इज मोनोसाइट। ओके, मगर सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर कहा जाए तो न्यूट्रोफिल का है, और न्यूट्रोफिल जो है आपके बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यूसिनोफिल। यूसिनोफिल की वजह से क्या होता है? एसिडिक कंडीशन बढ़ती है। ओके, यूसिनोफिल कॉज एलर्जिक रिएक्शंस आल्सो। ओके, सो आल्सो कॉल्ड एज यूसिनोफिल या एसिडोफिल। व्हाई डू कॉल्ड यूसिनोफिल? बिकॉज दिस सेल्स आर स्टेन्ड विद द एसिडिक डाई यूसिन, इसलिए इसका नाम गिरा यूसिनोफिल। और इसका परसेंटेज कितना है? दे हैव 2 to 3% ओनली। द न्यूक्लियस इज जनरली बायलोब्ड। किसका? यूसिनोफिल का जो न्यूक्लियस है बायलोब्ड है एंड दे आर रेजिस्ट टू द इंफेक्शन को रेजिस्ट करते हैं एंड दे कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। यूसिनोफिल की वजह से क्या होती है? एलर्जिक रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं यूसिनोफिल। ठीक है, न्यूक्लियस बायलोब्ड है इसलिए इसको यूसिनोफिल बोलते हैं। थर्ड इज कॉल्ड एज बेसोफिल। बेसोफिल इज आल्सो कॉल्ड एज साइनोफिल। व्हाई साइनोफिल? बिकॉज दे आर अपीयर ब्लू when they are stained with the
basic dimethylene blue. Basophils are stained with the basic dimethylene blue, and that's why they are appear bluish color, so called as cyanophil. Cyano means blue, bluish color they are found, and they have very less percentage, least percentage जो है WBC में सबसे कम परसेंटेज वाले है ये कौन? WBC में सबसे कम परसेंटेज वाले जो है दैट इज बेसोफिल है। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका था? न्यूट्रोफिल का। सबसे कम परसेंटेज किसका है? बेसोफिल का। ये आपको याद रखना पड़ेगा किसका परसेंटेज ज्यादा है, किसका परसेंटेज कम है, या फिर हाईएस्ट परसेंटेज टू लोअर परसेंटेज अगर अरेंज करना है, या लोएस्ट परसेंटेज टू हाईएस्ट परसेंटेज अगर अरेंज करना है तो भी आपको करने को आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसोफिल जो है साइनोफिल बोलते हैं उसको, और बेसोफिल के अंदर सिक्रेशन होता है। बेसोफिल हेल्प टू सिक्रेट सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल सिक्रेट होते हैं। वन इज कॉल्ड हिस्टामाइन, आपने सुना होगा। हिस्टामाइन कॉज इंफ्लामेशन, हिस्टामाइन की वजह से क्या होता है? इंफ्लामेशन होता है। ओके, अलग रिएक्शन वगैरह कॉज होती है, सो हिस्टामाइन की वजह से इंफ्लामेशन हो जाता है। सेकंड इज सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इज कॉल्ड एज वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर। सेरोटोनिन की वजह से क्या होता है? ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ओके, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है कौन? सेरोटोनिन, जो ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ाने में हेल्प करता है। एंड थर्ड इज कॉल्ड एज हिपेरिन, हिपेरिन इज कॉल्ड एज एंटीकोएगुलेंट, हिपेरिन इज कॉल्ड एज एंटीकोएगुलेंट। दे अवॉइड द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कौन? हिपेरिन की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं हिपेरिन। ऐसे तीन केमिकल का सिक्रेशन हो जाता है किससे? बेसोफिल, सॉरी बेसोफिल के अंदर से तीनों सब्सटेंस सिक्रेट होते हैं। वन इज हिस्टामाइन कॉज इंफ्लेमेशन, सेकंड इज सेरोटोनिन कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, एंड थर्ड इज हिपेरिन व्हिच अवॉइड द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड दे कॉज इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। बेसोफिल की वजह से क्या होता है? इंफ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाती है, और इसका परसेंटेज जो है सबसे कम है, 0.5 to 1% है किसका? बेसोफिल का। राइट, तो इसका मतलब ग्रैनुलोसाइट खत्म हो चुके हैं। ग्रैनुलोसाइट के मैंने 3 टाइप आपको बता दिया, और बेसोफिल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी थोड़ा ट्विस्टेड टाइप का है, या फिर यस सेपरा है, ट्विस्टेड टाइप का, या यस सेपरा न्यूक्लियस बोलते हैं उसको, किसमें? बेसोफिल के अंदर से। रिमेंबर हियर, बेसोफिल के जो केमिकल सिक्रेशन होता है, सेम केमिकल सिक्रेशन करते हैं कौन? एरियोलर टिश्यू में मास्ट सेल, एरियोलर टिश्यू के अंदर मास्ट सेल रहते, वो भी सेम केमिकल सिक्रेट करते हैं जो बेसोफिल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी ग्रैनुलोसाइट मींस व्हाट? अग्रैनुलोसाइट मींस व्हाट? अग्रैनुलोसाइट मींस दे हैविंग नो ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, द सेल हैविंग नो ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, सो कॉल्ड एज अग्रैनुलोसाइट। अ मींस नो, क्या नहीं है? ग्रैन्यूल नहीं है। कहां पे? साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं अग्रैनुलोसाइट्स। क्या बोलते हैं? अग्रैनुलोसाइट्स। ओके, इसके दो टाइप है, वन इज लिम्फोसाइट एंड अदर इज मोनोसाइट। लिम्फोसाइट मतलब स्मॉलेस्ट WBC, रिमेंबर स्मॉलेस्ट WBC, सबसे छोटी WBC जो है उसको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। ओके, और लिम्फोसाइट की खासियत क्या है? दे हैव 20 to 25%। लिम्फोसाइट का परसेंटेज कितना है? 20 to 25% ऑफ टोटल WBC। ओके, और इसका जो न्यूक्लियस है सर्कुलर है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC है। ओके, और लिम्फोसाइट कहां बनती है? लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन द ब्लड एज वेल एज प्लाज्मा, ब्लड एज वेल एज लिम्फ, सॉरी lymphocytes are found in the blood as well as lymph के अंदर खाली एक ही ब्लड सेल रहते हैं, दैट इज lymphocytes। ओके, और lymphocyte के बाद में और दो टाइप है, B lymphocytes एंड T lymphocytes। lymphocyte के दो टाइप कौन से हैं? B lymphocyte एंड T lymphocytes। इसका न्यूक्लियस सर्कुलर है, स्मॉलेस्ट WBC है lymphocytes, और इसके दो टाइप है, B lymphocyte एंड T lymphocytes। B lymphocyte की वजह से एंटीबॉडी बनते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, AMI किसको बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट को बोलते हैं। और ये जो एंटीबॉडी है प्रोटीन है, और ये प्रोटीन है बॉडी फ्लूइड में, मतलब ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। और आपको पता है बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड ह्यूमर, बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड ह्यूमर, एंड दैट्स व्हाई बी लिम्फोसाइट आल्सो प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसको दो टाइप की इम्यूनिटी बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। ऐसे दो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कौन? बी लिम्फोसाइट्स। एंड नेक्स्ट इज टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। CMI मींस
सेल mediated immunity provided by the T lymphocytes. ओके, सेल mediated immunity प्रोवाइड करता है। और मैंने आपको पहले बोला है कि लिम्फोसाइट का जो परसेंटेज है 20 to 25% है। ओके, और इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं बॉडी में एंड सिक्रीट एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। एक्चुअली इसका बी लिम्फोसाइट का और टी लिम्फोसाइट डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है आपको हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में है। बाद में टी लिम्फोसाइट के और 4 क्लोन बन जाते हैं, हेल्पर टी, किलर टी, मेमोरी टी एंड सप्रेसर टी। ये 4 टाइप के क्या बन जाते हैं, टी लिम्फोसाइट बन जाते हैं। ओके, तो ये इसका डब्ल्यूबीसी का टाइप हो गए पूरे। ओवरऑल डब्ल्यूबीसी का अभी एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, अभी देखो हाईएस्ट परसेंटेज लोएस्ट परसेंटेज आपका डब्ल्यूबीसी कहा गया, तो हाईएस्ट परसेंटेज न्यूट्रोफिल, देन लिम्फोसाइट्स, देन मोनोसाइट, देन यूशिनोफिल, देन बेसोफिल, ऐसा हाईएस्ट परसेंटेज टू लोएस्ट परसेंटेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओके, अभी जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट में मोनोसाइट की क्या खासियत है, देखो मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़े साइज के डब्ल्यूबीसी है कौन, largest type of WBC called monocytes, and they have kidney shaped nucleus, large size cell, and they are again phagocytic in nature. मोनोसाइट का जो परसेंटेज है 6 to 8% है ना, मोनोसाइट्स आर हैविंग 6 to 8% ऑफ द टोटल WBC। ओके, तो ये है मोनोसाइट की खासियत। ओके, अगर आपको पूछा गया लार्जेस्ट WBC कौन सी है, मोनोसाइट्स, स्मॉलेस्ट WBC कौन सी है, लिम्फोसाइट्स। इसका मतलब अग्रानुसाइट में एक लार्जेस्ट है और एक स्मॉलेस्ट है। ओके, मतलब डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन यू गिव आंसर ना। ग्रैनुलोसाइट में ऐसी कौन सी सेल है जो फैगोसाइटिक है, तो बोलोगे न्यूट्रोफिल। अग्रानुलोसाइट में कौन सी सेल है जो फैगोसाइटिक है, उसको बोलोगे मोनोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी में कौन सी सेल है जो फैगोसाइटिक है, तो ये दोनों आ जाएंगे, कौन से, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। सो इन दिस वे डब्ल्यूबीसी फिनिश। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट इज आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। एक्चुअली प्लेटलेट को शेप नहीं रहता, प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहते। ऐसा कहा जाता है कि जो डब्ल्यूबीसी ब्रेक हो जाते हैं तो उससे बनता है कौन, प्लेटलेट्स। दे आर अगेन कलरलेस, प्लेटलेट भी कलरलेस है। दे हैव इन लाइफ स्पैन 7 days, मतलब 1 week के अंदर सर्वाइव होते हैं, 1 week के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड काउंट जो है डब्ल्यूबीसी का याद रखना, प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन है 7 days है। एंड प्लेटलेट्स आर जो काउंट है दैट इज थ्रोम्बोसाइट काउंट बोलते हैं उसको हम। थ्रोम्बोसाइट काउंट इज 1.5 to 3.5 lakh per mm³। प्लेटलेट काउंट इज 1.5 to 3.5 lakh पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और आपको पता है अगर प्लेटलेट कम हो गए तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो जाएगा पर्सन का। क्लॉटिंग फैक्टर जो है इसके अंदर रहते हैं, तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए ये बनते हैं। और ये भी याद रखना, platelets are formed in the bone marrow by the special type of cell called megakaryocytes. In bone marrow स्पेशल टाइप्स के जो सेल बनते हैं उसको बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। मेगा मींस लार्ज साइज के न्यूक्लियस रहने वाली सेल है, उसको मेगाकैरियोसाइट बोलते हैं। वो बोन मैरो में है और उससे बनता है कौन, प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल है अपने बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। और दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रैगमेंट्स। याद रखना, प्लेटलेट को बोलते हैं हम लोग नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रैगमेंट। न्यूक्लियस तो नहीं है। और सेल फ्रैगमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल ब्रेक होने की वजह से बनते हैं ना, इसलिए नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रैगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट इज नाउ, अगला पॉइंट में जो आपको बता जा रहा हूं दैट इज ब्लड वेसल्स। ओके, ये हो गया पूरा ब्लड। ब्लड के अंदर बात ब्लड वेसल। ब्लड वेसल 3 टाइप के हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आपको पता होगा आर्टरी की सिंपल डेफिनेशन है ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, सिंपल डेफिनेशन। वेन की डेफिनेशन ब्लड वेसल कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। और कैपिलरी की सिंपल डेफिनेशन स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है और जो दोनों ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। ओके, जहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ओटो एंड न्यूट्रिएंट का, ठीक है, या CO2 एंड बेस का। ओके, देन हार्ट। हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर है। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स, ऑरिकल्स, एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, ऊपर के 2 चैम्बर को ऑरिकल बोलते हैं, ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स, एंड नीचे के 2 चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर, बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी नेक्स्ट इज लिम्फेटिक वस्कुलर सिस्टम क्या है। लिम्फेटिक वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट। वन इज कॉल्ड लिम्फ, जो कलरलेस फ्लूइड रहता है। सेकंड इज कॉल्ड लिम्फ नोड,
जिसके अंदर लिम्फोसाइट सेल बनते हैं। थर्ड इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक वेसल, जिसके अंदर वाल्व रहते हैं जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं लिम्फ का। और चौथा जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो छोटे लिम्फ कैपिलरीज रहते हैं जिसके अंदर से लिम्फ कैरी होता है। आपको पता होगा लिम्फ के अंदर से जब फैट पास होता है तो उसको हम लैक्टियल बोलते हैं। व्हाइट कलर बनता है ना लिम्फ का, इसलिए उसको बोलते हैं लैक्टियल्स। याद करो, मैंने आपको डाइजेशन चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लड कोएगुलेशन किसको कहते हैं? व्हाट इज कोएगुलेशन? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कॉल्ड है ब्लड कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं? ब्लड कोएगुलेशन। अब देखो ब्लड कोएगुलेशन क्यों हुआ? ब्लड कोएगुलेशन क्यों हुआ? ड्यू टू इंजुरी। आपको जब जख्म हो जाती है, इंजरी हो जाती है, बॉडी कट हो जाती है, ब्लड वेसल कट हो जाते हैं, जैसे कि पाइपलाइन कट होने के बाद अंदर से पानी आता है, वैसे ही हमारे पूरे बॉडी में एक नेटवर्क है किसका? ब्लड वेसल का, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज का। तो बॉडी कट होने की वजह से ब्लड बाहर आता है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है ना, और वो ब्लीडिंग रुक जाए, स्टॉप हो जाए, इसलिए ब्लड का कोएगुलेशन हो जाता है। और ब्लड कोएगुलेशन का जो ड्यूरेशन है, क्लॉटिंग का ड्यूरेशन जो है 2 to 8 मिनट है नॉर्मल पर्सन में। हीमोफीलिया जैसे डिसीज है जिसमें पेशेंट का ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। हीमोफीलिया जैसा हेरिडिटरी डिसीज है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। ओके, नॉर्मल अगर पर्सन है तो उसमें ब्लड कोएगुलेशन जो है उसका ड्यूरेशन 2 to 8 मिनट लगता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। मैकेनिज्म फॉर होम्योस्टेसिस, देखो आप बोलेंगे सर ब्लड कोएगुलेशन क्यों हो जाता है? टू कीप द बॉडी कांस्टेंट। अगर कट हो गई बॉडी तो बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए, होम्योस्टेसिस मतलब कांस्टेंट रखने के लिए ब्लड कोएगुलेशन होना जरूरी है। अगर कोएगुलेशन ना होता तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होती और पर्सन मर जाता, इसलिए कोएगुलेशन होना जरूरी है। आप बोलेंगे सर ब्लड बॉडी के अंदर कोएगुलेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि बॉडी के अंदर क्या रहता? हिपेरिन रहता। ब्लड के अंदर हिपेरिन रहता है, बेसोफिल बनाते हैं और जो ब्लड को लिक्विड बनाते हैं, अवॉइड करते हैं क्लॉटिंग को। ओके, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड इज लॉस्ट थ्रू इंजुरीज। ओके, क्लॉटिंग में क्या हो जाता है? जब इंजुरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, इंजुरी सील हो जाती है, वुंड हील हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। ओके, तो क्लॉटिंग के दौरान होता क्या है? देखो क्लॉटिंग के दौरान होता क्या है? सबसे पहले अगर टिश्यू इंजर हुआ, बॉडी ब्रेक हो गई, टिश्यू इंजर हुआ तो रिलीज हो जाता है कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक दूसरी तरफ अगर प्लेटलेट डैमेज हो गए, प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ब्रेक हो गए, तो फिर बनता है कौन? प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? इनिशियल फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, राइट? तो कौन कौन बना रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस बाय इंज्योर्ड टिश्यू एंड डैमेज द ब्लड प्लेटलेट्स, दोनों बनाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं फिर? इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या बनता है? क्या बनता है? कन्वर्ट होता है कौन? थ्रोम्बोकाइनेज, आल्सो कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिनेज। थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या बन रहा है? थ्रोम्बोकाइनेज फैक्टर एक्टिवेट हो गया, ओके, या प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है? हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल के अंदर हिपेरिन था उसको अभी इनएक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि क्लॉट करना है ना। हिपेरिन अगर काम करे तो ब्लड लिक्विड हो जाएगा, क्लॉटिंग अवॉइड करेगा। तो यहाँ पे उसको हिपेरिन को क्या करना पड़ेगा? इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड को क्लॉट करना है, कोएगुलेट करना है, क्लम्पिंग करना है ब्लड का, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कैल्शियम आयन जो रहते हैं, एंजाइम रहता है हाइड्रोलाइजेस, और प्रोथ्रोम्बिनेज जो है एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिनेज, वो क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्शन थ्रोम्बिन में करता है। आप बोलेंगे प्रोथ्रोम्बिन क्या है सर? इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है। इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर उसको एक्टिवेट किया जाता है और उसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। एक्टिवेट हो जाता है क्लॉटिंग फैक्टर, थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, और फिर थ्रोम्बिन बनने की वजह से ये थ्रोम्बिन क्या करता है? सोल्यूबल फाइब्रोनोजिन रहता। कौन? सोल्यूबल फाइब्रोनोजिन है। कौन है फाइब्रोनोजिन? प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। सोल्यूबल फाइब्रोनोजिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है, सोल्यूबल था, उसका कन्वर्शन इनसोल्यूबल फाइब्रिन में बन जाता। और फाइब्रिन बनने की वजह से जहां पे इंजरी हुई थी, जहां पे इंजरी हुई थी, ब्लड वेसल डैमेज हुई थी, सपोज ऐसी ब्लड वेसल डैमेज हुई थी, तो वो क्या हो जाती है? यहाँ पे फाइब्रिनोजिन की वजह से फाइब्रिन बन जाते। व्हाट इज दिस फाइब्रिन? फाइबर बन जाते, और उस फाइब्रिन के अंदर प्लेटलेट ट्रैप हो जाते, एक्युमुलेट हो जाते। फाइब्रिन के अंदर क्या हो जाता? फाइब्रिन के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो ट्रैप हो जाते, एक्युमुलेट हो जाते, और जिसकी वजह से ये जो वुंड था, ये जो ब्रेक हुआ वाला पार्ट था, वो सील हो जाएगा। ओके, वुंड हीलिंग हो जाएगा। ओके, और इस तरीके से फाइब्रिन बन गया। फाइब्रिन कैसा है? इनसोल्यूबल है, और फिर उसमें
प्लेटलेट ट्रैप हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, और फिर क्या बनता है, क्लम्प बनता है, क्लॉट बनता है, कोएगुलम बन जाता है। कोएगुलम मतलब ब्राउन कलर का एक रेडिश ब्राउन कलर का स्कम्प बन जाता है, उसको बोलते हैं कोएगुलम। डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट वहां पे एक्युमुलेट हो जाते हैं, और इस तरीके से ब्लड वेसल जो है ब्रेकअप हुई थी, इंजर ब्लड वेसल जो हुई थी, ब्रेक हुई थी, जिसके अंदर से ब्लड आ रहा था, अभी वो ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, सील हो जाएगा, और ब्लड कोएगुलेशन दैट लीड टू द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब समझ रहे हो? होम्योस्टेसिस का मतलब टू कीप द बॉडी कांस्टेंट, मतलब बॉडी के अंदर से जो लॉस हो रहा था ब्लड का, उसको रुकाया गया, उसको अवॉइड किया गया, और उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। सो ओवरऑल ये पूरा मैंने जो आपको आज का पॉइंट बताया, उसमें मैंने आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, उसके अंदर दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से है, वन इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सेकंड इज लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के टाइप्स, लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट्स, ये बताया। उसके साथ साथ मैंने आपको आज पॉइंट जो कवर किया, ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लम्पिंग। ओके, कल या नेक्स्ट क्लास में हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्लड ग्रुप। ओके, व्हाट इज ब्लड ग्रुप, और उसमें एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है और आरएच फैक्टर क्या है, उन दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज like and subscribe my channel if you like my videos, okay, and share for your needful friends as well as your students. Thank you very much. All living organisms contain cells which require nutrients and oxygen to produce energy. Cells also produce wastes such as urea, uric acid, and carbon dioxide. Hence, there should be a continuous supply of nutrients and removal of waste from the cells. This process of supply and removal is carried out by simple organisms like sponges by allowing water to flow through their body cavities. It is also carried out by complex organisms like humans through a special medium called body fluids that circulate these substances throughout the body. Body fluids include blood, interstitial fluid, and lymph. Blood is the common body fluid used for circulating nutrients and removing waste throughout the body in humans. It is a liquid connective tissue that consists of 55% liquid plasma and 45% formed elements called blood cells. Now, let's see what plasma is made of. Plasma is a straw-colored fluid constituting 90 to 92% water, 6 to 8% proteins, 1.2% nutrients and gases, and 0.8% inorganic salts. The major proteins in plasma include albumins, globulins, and fibrinogens. Each type of protein performs a specific function. For example, albumins maintain the osmotic balance by transporting minerals in and out of the blood. Globulins help in the body's defense mechanism, while fibrinogens are crucial for the clotting of blood. Plasma also contains organic nutrients such as glucose, amino acids, and fats, respiratory gases such as oxygen and carbon dioxide, and inactive clotting factors. There are also traces of inorganic salts such as sodium, calcium, magnesium, and bicarbonate in plasma. The remaining 45% of blood is made up of formed elements that include erythrocytes, leukocytes, and platelets. Erythrocytes, or red blood cells, comprise 99% of formed elements. In adults, they are formed in the bone marrow. Did you know that a cubic millimeter of blood contains around 5 to 5.5 million RBCs? RBCs are biconcave in shape and lack a nucleus in the mature state.
Their red color is due to the presence of an iron-containing protein called hemoglobin, which plays a vital role in the transport of the respiratory gases, oxygen and carbon dioxide in the blood. The lifespan of an RBC is around 120 days, after which it is destroyed in the spleen, which is known as the graveyard of RBCs. A low RBC count in the blood can cause anemia in humans. Unlike erythrocytes, leukocytes or white blood cells are colorless and possess a nucleus. There are 5 types of leukocytes. Based on the presence or absence of granules in their cytoplasm, these cells are further grouped as granulocytes and agranulocytes respectively. Neutrophils, eosinophils, and basophils are called granulocytes, while lymphocytes and monocytes are called agranulocytes. The chart displays the composition of different types of WBCs in blood. Each of these cells has a specific function in the defense mechanism of the human body. For example, neutrophils and monocytes act as phagocytic cells and destroy foreign substances by engulfing them. On the other hand, eosinophils fight infections and are linked to allergic reactions, while basophils, the smallest granulocytes, secrete substances such as histamine and serotonin and are involved in inflammatory reactions. In contrast to the other leukocytes, lymphocytes include T lymphocytes and B lymphocytes and are involved in the immune responses of our body. For example, T lymphocytes attack abnormal or tumor cells, while B lymphocytes produce antibodies against foreign microorganisms. Did you know there are around 4,000 to 11,000 WBCs per cubic millimeter of blood? The third component of formed elements is platelets, which are formed in the bone marrow as tiny cell fragments called thrombocytes. A cubic millimeter of blood contains around 150,000 to 450,000 platelets. They circulate in the blood for around 7 to 10 days, after which they are destroyed in the spleen and liver. Platelets help in clotting by releasing calcium and clotting factors present in their cytoplasmic granules. Let us see how platelets help the clotting of blood. Clotting or coagulation is a protective mechanism that takes place at an injured site to prevent loss of blood. An injured blood vessel releases certain chemicals, which trigger the activation and accumulation of platelets at the injured site. The activated platelets in turn release other factors required for clotting. These factors, along with thrombokinase and calcium, activate the inactive clotting components of plasma to start a cascade of reactions. These reactions catalyze the conversion of inactive prothrombin to active thrombin, which in turn helps convert inactive soluble fibrinogen into active insoluble fibrin. Fibrins form a mesh in which dead and damaged blood cells are trapped to stop blood loss. The mesh looks reddish-brown and is called a clot or coagulum, which is formed in 3 to 5 minutes. As platelets help clotting, their reduction can result in clotting disorders causing severe blood loss. Apart from blood, interstitial fluids and lymph are other important body fluids that make up our body. Interstitial fluid or tissue fluid is formed when some quantity of water and water-soluble substances squeeze out from the blood capillaries into the intercellular spaces.
Its composition is similar to that of plasma and serves as a medium between blood and cells in the exchange of nutrients, gases, and waste. When this tissue fluid enters the lymphatic capillaries, it is called lymph. Lymph is a colorless body fluid that contains lymphocytes, nutrients, hormones, and proteins. Lymphocytes in the lymph help the body fight microbes such as viruses and bacteria. Lymph also plays a major role in the absorption of fat through lacteoles in the intestinal villi, where the absorbed fat is drained into lymphatic vessels. This network of lymphatic vessels that collects lymph fluid forms the lymphatic system. The collected lymph fluid, along with absorbed fats, is drained into the blood at lymph nodes. In this manner, lymph, blood, and interstitial fluid play an important role in the continuous supply of nutrients to cells and the removal of waste from cells. Do you know what your blood group is? Blood in humans can be grouped